Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. This webinar is conducted by NutriClinic Society. It is a non-profit organization for the welfare of mankind. Its goal to have well-nourished nation that effectively contributes to the national development and prosperity. Today, our guest speaker is dietitian Roshina Rabe, a gold medalist and former dietitian at Shifa International Hospital, Islamabad and CMS Parakan. I warmly welcome her to share her knowledge about nutrition and lifestyle in COVID-19 pandemic. So now moving towards our main topic of the discussion. Okay, the topic is divided into four main contents. Number one, I will just summarize the COVID-19 infection, but not will go into a very far detail as already we all have enough knowledge about it. Then what I will focus on is the nutrition and lifestyle modifications that have been found more secure in this pandemic. Based on many different scientific studies, we will discuss this scenario. And then after that, I will discuss a survey on COVID-19 patients. And we will leave with a take-home message. In this part, what we need to know about COVID-19 infection is basically that it is a coronavirus, basically is a virus that belongs to a family, that is Coronaviridae family. And it is a single-stranded RNA enveloped, basically this is the virus. And it has three types. Previously, it is the two types only, known as SARS-CoV and MERS-CoV. And in 2019, when there are a number of cases arise, it's third and well known, which is known as COVID-19. This type has been under discussion. Basically, this virus, it has jumped the species barrier to human from any other intermediate animal host till that is not known. As we all know, the progressively increasing COVID-19 cases and deaths, highly critical care patients prevalence in 9 to 11%, patients in ICUs, and mortality rate 5 to 7%. And the COVID-19 all of this scenario has started a new battle in human history for a safe and fearless life. So this is the time to learn solutions from those who have experienced, and therefore our timely nutritional and lifestyle modifications can help us save our future. Here in this section, I will highlight how nutrition and lifestyle COVID-19 को affect करते हैं during the infection of a patient. Okay, nutrition for COVID-19 patient, how it is important. Nutritional management for proteins, demands for proteins, certain vitamins and minerals are increased in COVID-19. To fulfill the requirements of innate, adaptive and immune responses, ये क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि हमारा immune system इसमें innate and adaptive immunity और उनके biomarkers के लिए necessary हो जाता है, ठीक है? तो उनकी जो है ना वो increased amounts को fulfill करने के लिए and the body के अंदर fever की वजह से और high metabolic जो है ना metabolism की वजह से wear and tear बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी body के अंदर इसकी requirements increase हो जाती हैं. एक तो ये रीजन है कि हमें इसके लिए न्यूट्रिशन पर गौर करना चाहिए. एंड सेकेंडली, माइल्ड टू मॉडरेट डिसीजेज होती हैं बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट्स में. यूजुअली अगर देखा जाए तो 80% केसेस ऐसे हैं जो कि माइल्ड टू मॉडरेट रहते हैं. ठीक है, ऐसे केसेस में पेशेंट इज कन्फाइंड टू ओनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड दीज कैन बी मैनेज्ड एट होम विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल एंड लाइफस्टाइल modifications. Therefore, our concern here is to adopt such strategies that can help patients and our future coming generations from this disease or from the negative prognosis of its infection. We all know that diet is not a cure. Diet is not only not here the cure for COVID-19, but it can serve as a modifiable factor in its development. Other many such chronic pathologies होती हैं during COVID-19 patients. These can decrease micronutrient status of the body.
एंड हेंस इंक्रीज कर देती हैं वो उनके आरडीएस को उस पेशेंट में। इट डजंट मीन्स कि आरडीए यूजुअली या वैसे ही राइज कर जाती है। जब एक पेशेंट है उसकी बॉडी जो है उसके अंदर स्ट्रगल हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज की सिचुएशन के दौरान में डिफरेंट पैथोलॉजीज हो जाती हैं, ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स आम रूटीन से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कुछ की ड्रॉप हो जाती हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इसमें हमें जो है ना कुछ आरडीए कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिनको इंक्रीज करना पड़ता है डाइट में। सो वेल बैलेंस डाइट तो हमें सपोर्ट करती ही है, उसके साथ साथ सप्लीमेंटल डोजेस हमें रिक्वायर्ड होती हैं विटामिन सी, डी, ई एंड जिंक की, खास तौर पर जो कि इंकरेज करते हैं नॉर्मल बी एंड टी सेल्स की फंक्शनिंग को। एंड along with this, water also plays a very important key role in immune defense. So more than 2 liter water is always recommended. There are some food groups that have been found significant in the treatment of COVID-19 patients on the basis of many previous studies. These include vegetative protein sources, where we study about legumes and beans. और इसके पीछे उनके behind क्या concerns देखे गए हैं कि the presence of the dietary fiber in them and the presence of prebiotics and the B vitamins. Also, there are some constituents, chemical constituents, which are diazine and ginseins in legumes, which serves as predictive bioactive compounds for COVID-19 treatment. जिस तरह से बेटा स्टडी आगे चल रही है और उसमें कोविड-19 के लिए इस तरह के सर्टन जो है ना वो कंपाउंड स्टडी किए जा रहे हैं जो कि सर्व करेंगे आगे चल के इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज बायोएक्टिव कंपाउंड्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ों को, ठीक है, कुछ पेपर्स में देखा गया है। ठीक है, तो ये लिक्यूम्स के अंदर खास तौर पर वो 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा उन स्टडीज में, ये जस्ट मैं इससे हट के थोड़ा सा एडिशनल बता रही हूँ। ठीक है, फॉलिक एसिड उसका आ जाता है उसमें और राइबोफ्लेविन उसमें आ जाते हैं, ओमेगा 3 आ जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेशली इन्हें कॉल किया गया है कि दीज आर द बायोएक्टिव कंपाउंड दैट कैन फाइट फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन ड्यूरिंग उसकी जो है ना ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को खासा रिलीफ देते हैं। सो जो नट्स एंड सीड्स हैं, आवर नेक्स्ट जो है ना वो फूड ग्रुप है। दीज आर रिच इन एंटी इंफ्लेमेटरी ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, therefore they also play the protective role. उसके अलावा they have antioxidant polyphenols in them and immune supporting minerals like zinc and selenium. अब ऑफ कोर्स कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान आप सबने बहुत बार सुना होगा कि जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से विटामिन डी के खासतौर पर डोजेस दी जा रही हैं। उनके बिहाइंड यही सारी स्टडीज जो है ना वो फॉल करती हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, बट सप्लीमेंट्स के साथ साथ डाइट में भी ऐसे जो है ना वो सोर्सेज की मौजूदगी ज़रूरी है। तो नट्स और सीड्स हैं, दीज आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ जिंक एंड सेलेनियम। इसके अलावा नट्स और सीड्स के अंदर जो उनकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली ये प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो हमें सर्व करती हैं एज अ बायो एक्टिव पेप्टाइड्स के सोर्सेज पे। ठीक है, बायो एक्टिव पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, और वो अंदर जाकर छोटे पेप्टाइड्स में डिवाइड होते हैं, तो कुछ सर्टेन जो है ना वो अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि सर्व करते हैं एज अ बायो एक्टिव सोर्स। सॉरी बेटा, ये किसी का जो है ना लाइन्स आ रही हैं, कोई टच कर रहा है स्क्रीन को, आई गेस एनी ऑफ दिस, इसको आप देख लें। देन फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और इसके अलावा फ्रूट्स में राइबोफ्लेविन्स हैं, बीटा कैरोटीन्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि विटामिन ये इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स आ जाते हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। ये इसके ऊपर स्टडीज की गई हैं और ये खासा जो है ना पॉजिटिव रोल इन्होंने प्ले किया है। सिमिलरली मिल्क एंड योगर्ट कंजम्पशन, आमतौर पर यूजुअली क्या होता है कि अस्थमा होता है या खांसी होती है तो पाकिस्तान में या जनरली जो है ना वो दूध और दही या ये चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन कोविड के केसेस में बहुत सी स्टडीज इस तरह से रिपोर्ट की गई हैं कि जहाँ पर मिल्क और जो है ना इसकी योगर्ट की कंजम्पशन जो है ना दैट वाज हाईली बेनिफिशियल। और उसके बिहाइंड मोस्टली अभी तक अज्यूम ये किया जा रहा है कि जो राइबोफ्लेविन का कंटेंट है मिल्क में दैट इज क्वाइट हाई। और उसके अलावा योगर्ट्स में जो है ना माइक्रोबायोटा होता है जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी सपोर्टिंग है। अब इसके बाद में ये तो मेन कुछ जो है ना फूड ग्रुप्स थे। तो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस क्या हैं? ठीक है, मॉडिफिकेशन जो कि हमें पैंडेमिक में सर्वाइव करने में असिस्ट कर रही हैं। तो पेशेंट्स जो रिपोर्ट किए गए हैं विद स्लीप ऑफ लेस देन 7 आवर्स, ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर जो है ना वो ट्रबल्स देखी गई हैं। उनको जो है ना वो
अपनी रिकवरी के अंदर उनके डिलेज देखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना स्टीम का यूज जो लेस करते रहे हैं। स्टीम बेसिकली क्या है, दैट इज अ मोड फॉर थर्मल किलिंग। इसमें जब स्टीमिंग की जाती है तो इन साइड जो है ना वो जहाँ जहाँ तक स्टीम के इफेक्ट की वजह से थर्मल किलिंग इम्पोज की जाती है और वायरल लोड को कम किया गया है। तो बहुत सी स्टडीज इसके फेवर में जो है ना वो रिपोर्ट कर रही हैं कि जितनी ज्यादा स्टीमिंग की जाएगी दैट इज मोर बेनिफिशियल। स्टेइंग फिजिकली एक्टिव not only before but during COVID-19 infection already जो है ना वो रोल प्ले करता है। बट इसमें एक पॉइंट जहाँ पर जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी में देखा गया है, इसमें कुछ स्टडीज जो है ना वो आपको इस तरह की भी मिलेंगी जिसमें पेशेंट जो है ना वो मतलब अगर ज्यादा उसने एक्टिविटी की तो उसकी कंडीशन एग्रावेट हो गई, खराब हो गई। तो ये वेरी कर सकता है इस बात पर कि पेशेंट जो है ना उसकी सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, अगर उसके लंग्स बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टेड हैं तो ऐसे केस में उस पेशेंट को फिर हम या तो ऑक्सीजन पर शिफ्ट करते हैं या वो बेड रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाता है। बट एक नॉर्मल केस में जिस तरह से होम आइसोलेटेड केसेस में अगर पेशेंट्स को देखा जाए या हम अगर अपने घरों में अपने फैमिली के मेंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं और फिर कोविड-19 के जो है ना वो केसेस क्योंकि अब इसी तरह से जो है ना वो सामने आ रहे हैं, तो उस केस में पेशेंट को बिल्कुल ही आइसोलेट करके कमरे में बंद कर देना जो है वो ठीक नहीं है। अगर ऐसा है भी आप क्वारंटीन करें प्रॉपरली। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, वो सब कुछ होता है। उसके साथ साथ पेशेंट को ये इंकरेज करना कि ही शुड स्टे फिजिकली एक्टिव। ठीक है, जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए उठना बैठना है या एटलीस्ट रूम में थोड़ी सी जो ना इंडोर वॉकिंग दैट इज क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है, या आप अगर थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज यूज कर सकते हैं। या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो इंडोर जो है वो एक्सरसाइज जो है ना वो साथ साथ अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं और इसके रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव देखे गए हैं। और स्मोकिंग जो है ना ये अभी तक स्टिल कंट्रोवर्शियल है। इसमें कुछ केसेस जो है ना वो स्मोकिंग को इस तरफ ले जाते हैं जो कि स्क्रीन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं थर्मल, बट दैट इज नॉट वेरी जो है ना वो सपोर्टिंग। Now here is a study on a survey. Basically, this was a small survey conducted by me myself on my patients and many other patients found in these areas. Home isolated patients, they were contacted with telephone or WhatsApp for filling up a questionnaire performer, which was designed for especially for COVID patients. और इनके रिजल्ट्स को जस्ट मैं आपको जो है ना यहाँ पे शॉर्ट करके बताऊंगी क्योंकि इसकी डिटेल में अभी नहीं चाहते हम। आउटकम जो है ना उनके न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस बेसिकली यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो अडॉप्ट किए गए थे उसमें क्या चीजें थी। तो 74% पेशेंट्स जो है ना वो ऐसे थे जो जिन्होंने क्लेम किया था कि दे हैव एडेड मोर फ्रूट्स, that was good. And 45% patients जो है ना उन्होंने सूप्स या ब्रोथ्स का यूज इंक्रीज किया था। 31% patients जो है ना they added meats and nuts and 28.6% patients added eggs to their daily intake. बेटा आरिका, आपके आरिका कोई है बेटा, वो उनकी जो है ना वो फिंगर से स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो लाइंस आ रही हैं। Anyhow, next है रेमेडीज दैट वर मोस्ट अडॉप्टेड। उसमें ग्रीन टी लोगों ने अडॉप्ट की, जिंजर टीज अडॉप्ट की, हनी लेमन वाटर, गार्लिक एंड यूज ऑफ टर्मरिक या हाई प्रोटीन डाइट जो है ना ये these are adopted by patients on their own self और या जिसको कह ले के सुनी सुनाई बात पे लोगों ने इधर से उधर से कि ये चीज यूज की जाए, ये चीज यूज की जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अवॉइड करने में जो उन्होंने मोस्टली चीजें अवॉइड की या रिस्ट्रिक्ट की या ड्यूरिंग देयर इन्फेक्शन, जंक या फ्राइड फूड्स हो गए, उसमें राइस की कंजम्पशन कम कर दी और मिल्क की कंजम्पशन ओनली 11% लोगों ने कम की थी। सिट्रस की कंजम्पशन जो है ना वो 8.6% लोगों ने कम की। इसके अलावा जो है ना वो बाकी चीजें नॉर्मल लाइफ में चल रही थी। One interesting thing here was that more than 70% patients ने recommended servings का intake किया। Recommended servings in the term के मतलब food groups जो है ना वो उनमें से उन्होंने तकरीबन RDS से मिलती amounts consume की। For example, more than 2 servings of vegetables per day or more than 3 servings of fruits per day or more than 3 servings of legumes per week or more than 1 serving of nuts जो है ना वो उन्होंने वीकली बेसिस पर जो है ना वो कम से कम जरूर ली। ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने जो है ना मतलब तकरीबन RDS के करीब जो है ना वो सर्विस इनटेक की। जिस तरह से की बीमारी में आप परेशान होते हैं और आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हैं तो मोर देन 70% के रिजल्ट जो है ना वो RDS के करीब थे और ये बहुत अच्छा था क्योंकि इन सब चीज़ों का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा आया। Anyhow, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटल यूज को अगर देखा जाए तो 60% पेशेंट जो है ना दे took also multivitamins along with their diet and 55%
पेशेंट से विटामिन डी साथ में कंज्यूम किया। 62% पेशेंट जो है ना विटामिन सी को मतलब कैल्सी की फॉर्म में जो है ना वो उसमें से 75% कैल्सी की फॉर्म में ले रहे थे, एंड अदर जो है ना वो विटामिन ए डी ई जिंक की फॉर्मेशन किसी न किसी फॉर्म में ले रहे थे। मोस्ट यूज या मोस्ट अडॉप्टेड ड्रग जो है ना दैट वाज पैनाडोल। ऑफ कोर्स 66% तक तकरीबन जो है ना इसका यूज था, और एंटीबायोटिक्स में से एजोमिक्स ज्यादा यूज की जा रही थी। बाकी डिपेंड कर रहा था पेशेंट की सेवेरिटी पे, उनको जिस तरह से डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। देन जो कंक्लूसिव रिजल्ट्स हैं, ये छोटे से मेरे इस जो है ना उसमें से स्टडी में से कि क्या कंक्लूजन्स हमें मिले, तो बेसिकली जो मीन एक रिकवरी रेट था यहाँ पर लोगों का पाकिस्तान में, दैट वाज अबाउट 2 वीक्स, और मतलब तकरीबन 2.5 वीक, ठीक है। और उसमें से जो है ना वो मीन वीक के अंदर अंदर भी बहुत से लोग बहुत जल्दी कवर हुए, बट जिनका जो है ना डिले होता गया, ये मोर देन 3 वीक से उनकी रिकवरी डिले हुई। उनकी जो है ना वो क्या हैबिट्स थी, उनमें कुछ जो है ना वो मैनेजमेंट उनकी डाइटरी में इम्प्रूव होने वाली थी जो उन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक है। उसमें क्या था कि एक तो उन्होंने जो है ना वो ये एग्स की सर्विंग कम दी, लेग्यूम्स एंड नट्स वेजिटेबल्स की सर्विंग कम दी गई। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को नहीं ले रहे थे, या तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे थे, या मल्टीविटामिन्स भी बहुत कम ले रहे थे, ठीक है। और लाइफस्टाइल में उसमें से मोस्टली 83% वो थे जो कि आम रूटीन में वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते थे, और उसके अलावा जो है वो BMI मोर देन 828 था, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स जो है ना वो उनकी रिकवरी लेट उसमें आ रही थी। देन डायबिटीज वगैरह ऑफ कोर्स, और जो है ना वो मतलब ये चीजें साथ में इसके एसोसिएटेड है। ओवरऑल सम अप करते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये तो हो गया कि ये मोर देन 3 वीक है ना वो डिलेड इन लोगों में आ रहा था रिकवरी, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में, वॉक नहीं करना, स्लीप और करना, ठीक है। डाइटरी फैक्टर्स में हमने देखा कि एग की कंजम्पशन, ठीक है, बेसिकली एग बहुत नेसेसरी है, और वंस अ डे एग लेना बहुत जरूरी है। बट अगर हम रिकमेंडेशंस को फॉलो करें तो कम से कम 4 eggs per week दैट आर रियली जिनका कम था, और फिश, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ये चीजें जो है ना ये RDS, अगर आप चाहेंगे तो आपको फर्दर इस पर गाइड कर दिया जाएगा, तो ये चीजें। और इसके अलावा अदर जो है ना फैक्टर्स में डायबिटीज का प्रेजेंट होना, और एंजाइटी और स्ट्रेस या फियर ऑफ डेथ जिन पेशेंट्स को साथ में हो जाता है, तो उनका प्रोग्नोसिस भी और ज्यादा स्लो देखा गया था। तो टेक होम मैसेज यहाँ पर जो है ना वो आपके लिए, सबके लिए बेसिकली क्या है कि कोविड-19 एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अब अराइज हो गया है, ऑल्दो वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, बट इसकी वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये लोगों को हो रहा है, और ऑलमोस्ट ये सभी को जो है ना वो जिस तरह से कहा जाता है कि सबको एक दफा होगा, और नो डाउट हमें ऐसी जो है ना वो न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अडॉप्ट करनी है अपनी लाइफ में भी और अपनी घर अपनी फैमिली में भी, जो कि हमें सेफ रख सकें, जो हमें जो है ना इससे एक जो है ना प्रोटेक्टिवनेस प्रोवाइड कर सकें। इसकी रिकवरी में हमें जिसको कह लें कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसको बिल्कुल हम इसी तरह से अज्यूम करें कि जैसे हमें आमतौर पर कफ हो गई, खांसी हो गई, नजर फ्लू हो गया, ठीक है, तो उससे हम बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल जरूरी है सबसे पहले तो ये कि फिजिकली एक्टिव हो, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है ना वो डेली बेसिस पर 15 से 20 मिनट की भी किसी भी फॉर्म में एक्टिविटी जो है ना वो दैट इज रियली नेसेसरी। सेंसिबल बॉडी वेट मेंटेन करना, से नीचे आ जाए या 27 तक एटलीस्ट आ जाए, चले। आइडियल जो है ना वो 25 से नीचे उसमें नहीं भी पहुंच पाते, तो इसके करीब जो है ना वो आ जाए। देन स्लीप और जो है ना वो मिनिमम 7 होना बहुत ज़रूरी है। 7 से कम स्लीप आवर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेशेंट के साथ प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। कंज्यूमिंग मोर फूड्स फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, जो कि लोग ज़्यादातर मीट के लवर्स हैं, ठीक है, वो मीट और ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज देखे गए हैं। नो डाउट के प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है मीट, बट जो प्लांट के सोर्सेज हैं वो हमें बेनिफिट किस तरह से देते हैं, बिकॉज उनके अंदर प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स का नो डाउट हमें जो है ना वो बैलेंस करना पड़ता है, अमाइनो एसिड रेशियोज, लेकिन उसके साथ साथ उनमें हमें जो है ना बहुत सारे अदर प्रोटेक्टिव सोर्सेज मिलते हैं, नेचुरली जो प्रोटेक्टिव सोर्सेज हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलीफेनोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनमें मौजूद होते हैं जो कि खास तौर पर उनके ऊपर अब डिफरेंट स्टडीज की जा रही हैं कि वो कोविड से जो है ना वो मतलब हमें बचाने में और उससे हमें क्योर होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनका जो है ना और नट्स का यूज खासतौर किसी एक टाइम में डे के साथ टाइम में जो है इनको एडजस्ट करना है। रिकमेंडेशंस में आपने जो है ना वो आप में से जो जो भी आगे जो है ना वर्क कर रहे हैं और उनको जो है ना रिकमेंड करना है
अपने आगे पेशेंट को। सप्लीमेंटल डोजेज ऑफ विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आमतौर पे अगर आप बिल्कुल चलते फिरते हेल्थी हैं और आप डाइट हेल्थी ले रहे हैं तो डेली बेसिस पर जो है ना वो ज़रूरत नहीं भी पड़ती। बट जो है इस केस में अगर जो है ना आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो नहीं होना चाहिए, उसको कवर करें। एंड देन एक सेकंड जी, उसके अलावा ये है कि जब ये इन्फेक्शन हो गया है ना उस दौरान में पेशेंट के लिए खास तौर पर जो है ना वो उसकी इस पॉइंट से उसको जो है ना वो जरूर डील करना है कि उसको एक्स्ट्रा जो है ना वो मल्टीविटामिन की डोज किसी भी फॉर्म में दी जा रही हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का ब्रांड हो, उसमें से मल्टीविटामिन जिसमें डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स का कंबाइंड सोर्सेस होता है वो ठीक है। विटामिन ई और जिंक अगर आप नट्स दे रहे होंगे ना तो एक्स्ट्रा विटामिन का सोर्स और एक विटामिन डी का सोर्स जरूर ऐड करें। ड्रिंक वाटर की जो है ना वो 2 लीटर्स या इससे ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो डेली बेसिस पर जो है ना वो हैबिट में रखें और स्टीमिंग ज़रूर दें ऐसे पेशेंट को। और इसके अलावा ये कि आम जनरली टेक होम मैसेज में कि फॉलो करें एसओपीज को, जो कि कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। थैंक यू। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू बेटे। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर एक कोविड पेशेंट है, आपने मतलब जिस तरह बताया है कि खांसी वगैरह होती है तो हम उसको कहते हैं कि दही नहीं खाना, गले में रेशा वगैरह हो जाएगा और ऐसे होगा। और एक कोविड पेशेंट है उसमें हम ज्यादा उससे मोस्टली मतलब कहते हैं कि लिक्विड वाली चीजें देनी है उसको, हम ज्यादा कहते हैं और लेते मतलब देते भी हैं। तो लिक्विड बेटे हमने, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम कोविड का जो पेशेंट है उसको हम योगर्ट दे सकते हैं? जी बेटा योगर्ट दें आपको। योगर्ट जो है ना वो देने में कोई मसला नहीं है। ऐसे पेशेंट का जो है ना वो प्रॉब्लम उस टाइम ये होता है कि उनको ठंडी चीज़ जो है ना वो गले में जाकर उनको इरिटेट करती है, तो योगर्ट जो है ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला योगर्ट होना चाहिए और उसमें जो है ना उसकी जो खट्टापन सोरनेस वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज योगर्ट है ना दैट कैन बी गिवन एंड आई थिंक दैट शुड बी गिवन बिकॉज ये बहुत सी सारी स्टडीज में जो है ना हमें उसके बाद में उसका एक पॉजिटिव जो है ना वो रोल मिला है। और दैट मस्ट बी ड्यू टू, मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड और राइबोफ्लेविन जो है ना वो दूध में बहुत ज़्यादा होता है और वो इसी तरह से दही में भी ज़्यादा होता है और दही में दूध से भी ज़्यादा नरिशमेंट बिकॉज उसमें बहुत सारा माइक्रोबायोटा आ जाता है जो कि हमारी बॉडी को उस टाइम में हमारे इम्यून को हेल्प करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जैसे अभी आपने बताया कि जो वैक्सीनेटेड भी हो जाएंगे उनको भी कोरोना वायरस होगा, तो मैम उनको सवेयर होगा या फिर कैसा होगा उनको? देखिए बेटा वैक्सीनेशन के लिए अभी तो सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट है ना वो काफ़ी सारी जो है ना पॉपुलेशन की हो चुकी है। उसके बाद भी कुछ केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि दोबारा से पेशेंट जो है ना उनको कोविड हो रहा है, ठीक है। तो अब कोविड के केस में रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि अगर हम कोविड के ऊपर थोड़ा सा कोविड के अपने वायरस को इसको स्टडी करें ना तो ये अपनी स्ट्रेन चेंज कर रहा है, ठीक है। इसका जो आरएनए है उसकी प्रोटीन्स के अंदर इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं, तो वो एक स्ट्रेन का अगर वो है तो वो दूसरा कोई चेंज वाला आता है ना तो वो उसका इन्फेक्शन जो है ना वो उसका हो रहा है। तो द थिंग इम्पोर्टेंट हेयर इज कि अच्छी बात है वैक्सीनेशन जो है ना वो ज़रूर करा लेनी चाहिए बिकॉज डॉक्टर्स जो है ना वो उस पर स्टडी जो है ना डिफरेंट हो रही है और बता रहे हैं एक नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट के कंपैरिजन में जो वैक्सीनेटेड पेशेंट है उसके लंग्स जो है ना वो बहुत मतलब फ़र्क होता है। उसकी जो है ना वो मतलब प्रोग्नोसिस, डिजीज की प्रोग्नोसिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम सेफ्टी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कभी भी कि मतलब अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो कोरोना नहीं होगा। अब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गई है तो ऑफ कोर्स लाइफ ने अपने नॉर्मल उसमें आना है पैटर्न पे और लाइफ अपने नॉर्मल पैटर्न पर आएगी, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये लाइफ के साथ चलेगी। जैसे हमें नज़ला फ्लू जुकाम होता है और थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो कहीं अपना जो है ना वो प्रॉब्लम दिखाएगा, तो इसके उस जो है ना वो प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है ना आपको अपना जो है ना वो साथ साथ ख्याल और अपनी जो है ना वो ये डाइटरी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो है ना ये सारा हमें अपना इम्प्रूव करके रखना होगा। जज़ाकल्लाह मैम। देखिए मेरा बच्चा डाइट का जो ताल्लुक है ना वो वैक्सीनेशन से तो कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन हम बचपन में बच्चों की भी करवाते हैं
वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्टिवनेस देती है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो एंटीबॉडीज बना देती है, ठीक है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि वो जो पहला 1-2 हफ्ता है उसमें भी ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हल्का फुल्का किसी को थोड़ा सा फीवर होता है बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। आप ओवरऑल जो है ना मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ओवरऑल अपनी जो है ना वो डाइट में ये वाली जो है ना चीज़ें रखें, ये मॉडिफिकेशन अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, जो अवॉइड करें जंक फूड को और उन चीज़ों को, ठीक है किसी एक जो है ना वो तो किसी इवेंट या इवेंट टू इवेंट जो है ना वो हम उन चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाएं, जंक फूड को और ये ड्रिंक्स को, इन चीज़ों को। और अपना जो है ना एक हेल्थी पैटर्न अडॉप्ट करें कि आपकी डेली जो है ना वो रूटीन में आपने किस तरह से जो है ना वो मिल्क और मिल्क के सोर्सेज कंज्यूम करने हैं, फ्रूट के सोर्सेज कंज्यूम करने हैं, और इसी तरह से जो है ना वो मतलब ये नट्स या सीड्स या फिर लिग्यूम्स वगैरह भी लेनी है। दालों को बुरा नहीं समझे, बल्कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ज़रूरी यहाँ ये है कि आप उस तरह से उन वेज में इन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, जो मतलब अगर किसी को पसंद नहीं है तो आप मॉडिफाई करके वो चीज़ें उन्हें दे सकें, ठीक है। और बस बैलेंस, हेल्दी बैलेंस डाइट है ना उसके ऊपर फोकस रखें, वो चाहे कोरोना होने से पहले की है या चाहे वो पोस्ट कोविड है या वो ड्यूरिंग कोविड है। बस ड्यूरिंग कोविड का ये होगा कि आपको ऐसे पेशेंट को, चूंकि उस टाइम वो पेशेंट अपनी एक इन्फेक्शन की कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसकी जो है ना वो इंक्रीज होंगी उसकी डिफरेंट चीज़ों की जो है ना रिक्वायरमेंट्स, उनको मीट करने के लिए हमें उसे जो है ना सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको सप्लीमेंट्स जो है ना वो एडिशनल देंगे और ये एक्स्ट्रा उनकी केयर करना होगा, अदरवाइज बाद में हम अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह मैम। और यहाँ बेटे मैं आप लोगों को एक अप्रिशिएट करूँगी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो न्यूट्रा क्लिनिक सोसाइटी है कि माशाल्लाह बहुत छोटे और मुझसे बाद में मेरे से जूनियर मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें शायद मैंने कभी नहीं की। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप आपस में एक दूसरे के साथ और ये डिफरेंट जो है ना वो सीनियर लोगों के साथ आप जो है ना वो मतलब इस तरह से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, डिफरेंट अपने टीचर्स के साथ भी कर पाते रहेंगे, और इस तरह से जो है ना और भी लोगों को इसमें इनवाइट करें, ताकि जो है ना इसके बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में लोगों को जो है ना वो नॉलेज मिल सके, और जो हम पैगाम देना चाहते हैं ना वो सब तक बहुत आसानी से जा सके, ठीक है। बट ये कि जब वायरस आप एक उसमें से इन्फेक्शन से निकले हैं ना, उस वक्त तो ऑलरेडी आपके अंदर बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई होती है, ठीक है। आप एंटीबॉडीज का अपना टेस्ट करवाएंगे, जो कि इन्फेक्शन से निकलने के 2 से 3 हफ्ते के बाद में जो है ना आपकी बॉडी में पीक पर जो है ना वो एंटीबॉडीज होती हैं, और वो बाद में फिर थोड़ा सा जो है ना वो स्लो डाउन ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जब बॉडी में मौजूद है तो उस टाइम फौरन से आपको जो है वो वैक्सीनेशन करवाने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है। तो आई गेस कि 3 मंथ्स के बाद जो है ना वो रिकमेंड किया जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आप किसी भी पोजीशन से इस बारे में जो है ना बेटर ओपिनियन ले सकते हैं। और ये भी ट्रू है कि वैक्सीन एंटीबॉडीज हर पेशेंट में नहीं बनती, ठीक है। 5% तक ऐसे लोग भी हैं जिनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाने के बाद या वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनती, ड्यू टू द जिसको कह लें कि इम्यून सिस्टम के अंदर थोड़ा सा उनका जो है ना प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को खास तौर पर थोड़ा जो है ना वो ज़्यादा केयर में रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन है जी मैम, जब कोविड पेशेंट का हम असेसमेंट करेंगे तो हम उसका कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, फिर ही कोई उसको डाइट प्लान रिकमेंड करेंगे? कोविड के पेशेंट तो बेटा एक तो ये है ना कि अगर तो वो ड्यूरिंग कोविड है वो पेशेंट, ठीक है, तो उसकी उस टाइम पे असेसमेंट करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि ये हाईली कंटेजियस है, ठीक है। आप उसको, उसके पेशेंट को उस तरह से आप हैंडल नहीं कर सकते कि आप उसे जो है ना वो वो आपकी क्लिनिक में भी आ जाएगा, या आप उसको खड़ा करेंगे और उसकी हाइट वेट और उसका वो सारा कुछ लेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए आपको जी बहुत जी सारे जो है ना वो बहुत सारे कहने के गैजेट्स और बहुत सारी आपको जो है ना वो एडिशनल जो है ना वो SOPs का ख्याल रखने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैम। उसमें डिपेंड करता है कि उसका पेशेंट का जो है ना वो मतलब किस किस्म की उसकी जो है ना वो है कंडीशन कैसी है। आप उसको अगर फ़ोन पर ही उसके साथ जो है ना वो कर सकते हैं, उसकी कंडीशन स्टेबल है तो आप फ़ोन पर ही उसका एक अच्छा सा उसके साथ जो है ना वो कंसल्टेशन, जिस तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन होती हैं, आप ऐसे भी उसको जो है ना वो गाइड कर सकते हैं, सारा उसके बारे में उसका लेके क्वेश्चन। हाँ अलबत्ता आप उसमें अगर आपका
पॉइंट ये है कि वो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है या उसको कोई और प्रीवियस भी उसके इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल उसको हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ वो सब कुछ है, तो उसका तो हमें सारे ऑफ कोर्स उसका हमें एक अलग से जो है ना उन सबको मद्देनजर रखते हुए उसका डाइट प्लान बनाना होगा और उसको जो है ना उस हिसाब से हमें कंसल्ट करना होगा। लेकिन आप जो है ना अगर हॉस्पिटल में है तो फिर वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट पे वेरी करता है कि वो पेशेंट वहाँ पर किस नेचर का है, वो क्रिटिकल केयर पेशेंट है तो आपको उसको उसी तरह से वहाँ पर डील करना होगा। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम आपसे एक क्वेश्चन है। जी मैम विटामिन सी बहुत अच्छा होता है ना, ये क्या नाम है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो मैम फ्रूट्स जो होते हैं जैसे लेमन वगैरह, ऑरेंज वगैरह, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ पेशेंट जिसको एलर्जी होती है उनके लिए कोई अल्टरनेटिव्स हैं? आपने बेटा विटामिन सी का क्वेश्चन किया है ना? हाँ जी। हाँ जी, और आपने इसका अल्टरनेट क्या पूछा है? सिट्रस से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, उनका गला खराब हो जाता है, उनका खराश हाँ होने जी, ये लग कुछ जाती लोग है या फिर सेंसिटिव कुछ होते हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी। अदरवाइज तो ये है कि कोविड के पेशेंट में बहुत सारा लोगों को रिकमेंड किया जाता रहा है और पेपर्स इस पे भी हैं कि ज़्यादा कंजम्पशन की है लोगों ने सिट्रस की, ठीक है, विटामिन सी के ज़्यादा इंटेक के लिए। लेकिन हर कोई, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पे जो है ना लोगों में एक जनरल कंसर्न ये पाया जाता है कि वो खट्टा है तो वो गला ख़राब कर देगा। नो डाउट खट्टी चीज़ जो है ना वो गले को लग जाती है, लेकिन उसमें जो है ना आप जो तुर्श वाला कम होता है, लेकिन आप सिट्रस फिर भी ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है और वो दूसरी उसकी जो है ना डिफरेंट वैराइटीज़ जो है ना वो हम वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज उसका ये है कि विटामिन सी के और भी सोर्सेज हैं जो कि बहुत रिच सोर्सेज हैं। डाइटरी सोर्सेज में आप विटामिन सी के जो दूसरे सोर्सेज हैं लाइक आप गुआवा ले सकते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रॉबेरीज ली जा सकती हैं, दूसरी बेरीज कोई ली जा सकती हैं, फिर वेजिटेबल के सोर्सेज जो है ना वो फॉलो किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साथ में जो है सप्लीमेंटल डोज ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो है ना वो ली जा सकती है किसी भी फॉर्म में। अगर कैल्सी भी जो है ना वो थोड़ा सा तुर्श है ना वो फ्लेवर देती है तो हम उसके अलावा जो है ना दूसरी टैब्यूलेटेड फॉर्म में भी विटामिन सी आता है, ठीक है, तो उसका जो है ना वो टेस्ट नहीं फील होता, उनकी तरफ पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अभी जिस तरह आपने कहा कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं जब कोई भी इशू हो रहा हो, तो क्या हमारे लिए जरूरी है कि अब हम लोग वैक्सीनेशन मतलब लाजमी करवाएं? इज इट नेसेसरी और नॉट? बेटा वैक्सीनेशन करवाना जिस तरह से अभी चल रहा है ना कोविड का सिनेरियो, वैक्सीनेशन तो नेसेसरी है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उस पर अभी तक जो मतलब उसके ऊपर स्टडीज आई हैं उसमें यही है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो वही भी है ना वो 3 मंथ्स के बाद दोबारा से आप अपना वैक्सीन इसमें एंटीबॉडीज वाला टेस्ट करवा के चेक कर सकती हैं अपने आप को जो है ना श्योर करने के लिए कि आपकी बॉडी में जो है ना वो मतलब किस लेवल तक है, अभी मौजूद है या वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये आप टेस्ट से जो है ना एंटीबॉडीज का जो टेस्ट होता है उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये कि अगर आपको अभी अभी रिसेंटली किसी को हुआ है तो आप थोड़ा सा गैप देके उसके बाद में फिर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for arranging such an informative program. थैंक यू बेटे, आप लोगों ने भी जो है ना मुझे याद रखा, ठीक है, और माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जो है ना इस तरह से टाइम निकाल रहे हैं और लर्निंग के लिए आप लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज वेरी गुड। Thank you so much, members, for joining us and cooperating us. Ma'am, today का session बहुत अच्छा था. Thank you so much. I think meeting should be. Zakat.